Department of IT and Electronics, Government of West Bengal has launched a hackathon for development of data anonymizer with support from data innovation firm Sapio Analytics. The Anonymizer Hackathon, enabling trust in privacy, invites academicians, students and technologists from across the globe to participate in the creation of this transformative innovation. The hackathon shall be held in two main phases: Ideathon, to deep dive into the problem and came up with the problem statement, and Hackathon for actual development of the tool. Ideated, conceptualized and formed by the Department of IT and E, the concept of anonymized data lake, anonymization auditor, and artificially intelligent layer of data anonymization are expected to generate a data-driven economy. Throughout the phases, Sapio Analytics, a firm known for its intelligent data lake powering India's livelihood, shall provide consistent membership and guidance to all developers as a knowledge support partner. The mentorship for the hackathon shall be executed under the guidance of Padma Shri Professor Bimal Kumar Roy, former director of Indian Statistical Institute, Kolkata, and a leading cryptologist known for his innovations across the world. A team of expert mentors shall be constituted under Professor Roy's overall mentorship. The anonymizer can change the way we see and experience the current data revolution. Every solution maker, whether startups or industries, wants live public transactional data, and this live data will be passed through the anonymizer, resulting in an anonymized data lake, said Sanjay Kumar Das, Joint Secretary, Department of IT and Electronics, Government of West Bengal, at the occasion of the launch. This innovation is expected to transform the way we use data. It will make data truly valuable by allowing it to be rightly anonymized before being monetized for growth and impact. We are hoping that this anonymizer will become an integral part of every major government and corporate policy, added Ashwin Srivastava, CEO of Sapio Analytics. আমার বহুদিন ধরে মনে হচ্ছিল এবং আমরা থিওরিটিক্যাল কাজকর্ম আইএসআইতে সাথে করছিলাম যে কী করে সমস্ত তথ্য পাবলিকের কাছে আনা যায় অথচ প্রাইভেসিটা কম্প্রোমাইজ হবে। এটা একটা অনেকটা সময় পাথরের বাড়ির মতো মনে হচ্ছিল আর কি। সাধারণভাবে মনে হয় যে নামটা বাদ দিয়ে দিলে দেবো, কিন্তু সেটা আমরা দেখি সেটা তো বিষয়টা অবশ্যই নয়। অন্য তথ্য থেকে কিন্তু ভালো করে ফেলা যাবে এই যেমন ধরুন একটা লিগাল প্রসিডিং হচ্ছে, আমাদের লিগাল ডোমেনে হয় ধরুন একটি আমাদের কারো তো জানার কোনো অধিকার নেই যে এই মেয়েটি রেপ করেছিল, হয়নি। কিন্তু যখন এটা যখন ডিজিটাল ট্রান্সমিট হচ্ছে পুরো প্রসিডিংসটা, তাহলে এখন মেয়েটার মুখটা ব্লাড করে দিলে বা নামটা তুলে দিলেই কিন্তু ওটা প্রাইভেসি রইল না। মানে যখন আলোচনা চলবে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে, তাদের অনেক তথ্য থাকবে যেগুলোর থেকে আমরা অনেকে বার করে ফেলতে পারবে সেই মেয়েটি। Launched in association with the Amazon Web Services AWS as technology partner and WU-ELF8 as hackathon partner, this hackathon is expected to engage with some of the best brains in data analytics, leading to the first of its kind innovation. The winners of the hackathon shall be provided an opportunity to do a pilot project with the Government of West Bengal, deploying the solution with real-life transactional data through the Department of IT and E with support from the knowledge partner Sapio Analytics. The pilot is expected to deliver for the first time an artificially intelligent layer of anonymization for data used by government departments, thus ensuring privacy with trust. This shall make the state of West Bengal the first state in India to usher in a data revolution. मेरा नाम संजय कुमार दास है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
और मैं राज्य तथ्य सुरक्षा अधिकारी हूँ। आज का ये आपका हैकाथॉन जो है कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, इसका मेन मकसद क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, किस तरह से लोगों को डेटा सुरक्षा देना चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि आदमी की और पूरी कायनात की जो डेटा है, जिसको लेकर के सबसे बड़ी चिंता है, और आदमी समझे या ना समझे हर वक्त इस डर में रहते हैं कि अपना जो डेटा है वो कैसे किसी का हाथ में ना चला जाए। और सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है उस व्यवस्था में अभी नहीं रहने से किसी आदमी को कुछ नहीं हो सकता, सबको रहना ही है, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड हो चुकी है। तो यानी कि हमारी सबका एक नॉर्मल जो अवतार है वैसे एक डिजिटल अवतार भी है ना। तो किसी आदमी सही है कि नहीं वो देखने के लिए हम तो पहले फट से उसकी फेसबुक अकाउंट, उसकी ट्विटर अकाउंट, वो सब चेक करते हैं। उनको बताते हैं अरे आपका तो व्हाट्सएप में कोई अकाउंट ही नहीं है, ट्विटर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फेसबुक में नहीं, इंस्टा में नहीं हो आप। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर ह्यूमन हैं तो आपकी ज़रूर एक डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। लेकिन हम देख चुके हैं कि ट्विटर के 80% अकाउंट जो है वो फेक है, यानी कि जो डिजिटल है वो ह्यूमन नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, तथ्य की सुरक्षा तथ्य को सभी के साथ बांटने के जरिए से चालू होता है ना। तो उसका जरिया क्या होता है, साधन क्या है, माध्यम क्या है, वो डिजिटली जो प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ शेयर करना है। वो सबसे बेहतर ये होता है अगर वो शेयरिंग के वक्त इसको एनोनिमाइज किया जाए, यानी कि उस शेयरिंग भी हो लेकिन उस आदमी को कोई पहचान ना पाए। यानी कि मुझे इस जो वीडियो देख रहे हैं इससे आपने पहले क्या पूछा, आपने पहले मुझे क्या पूछा मेरा नाम, नाम किसने पूछा, जरूरत तो है इस चीज़ क्या है वो देखने का। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है उसके IT डिपार्टमेंट में चाहती क्या है, वो चाहते हैं कि हर आदमी का तथ्य सुरक्षित रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए, उस तथ्य में जिससे उसको पता चले, आइडेंटिफाई किया, उसको हटाए। यानी कि आपने जो पहले प्रश्न पूछा उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या मैं बोल रहा हूँ उसमें आदमी की कोई बेनिफिट होगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, वो ज़रूरी है। मैं ज़रूरी नहीं हूँ, गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट की एफर्ट ज़रूरी है। आदमी समझे कि गवर्नमेंट ये कर रहे हैं, उसमें कौन बोल रहा है वो ज़रूरी नहीं है। ये आदमी को निकाल देना, व्यक्तिगत रूप से आदमी और उसकी कोई उसके साथ संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन उसको निकाल के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को लेके जाना, इसको कहते हैं एनोनिमाइज डेटा। और इससे कैसे हो सकता है, जैसे चाय में जो छकनी होता है, चाय पत्ती रह जाती है छकनी में, तो एनोनिमाइजर ऐसे एक टूल होगी जिससे वो आइडेंटिफाइबल चीज़ जो है वो रह जाएगा, और नीचे जो चाय गिर के पड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो चाय की जो पूरा तादाद होगी, जो तालाब होगा, वो तालाब जो है वो एनोनिमाइज्ड होगा। उससे कॉन्टेक्स्ट तो रह जाएगा। कितने आदमी यहाँ जैसे डायबिटीज़ से बीमार हैं वो सबको पता चलेगा टाइप 2 डायबिटीज़ कितने आदमी का है, ओबेसिटी डायबिटीज़ के साथ क्या रिलेटेड है। लेकिन मैं कितना ओबेस हूँ, मेरा डायबिटीज़ है कि नहीं, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो पूरा एफर्ट है वो पहले ही हम किसी का नाम पूछ लेते हैं, उसका डिटेल्स पूछ लेते हैं, उसके बाद वो जो भी बोलेगा अल्टीमेटली उसके पास ही चला आएगा। तो कायनात को ज़रूरत नहीं है ये जानने की मेरा डायबिटीज़ है कि नहीं, ये जानने की ज़रूरत है अगर डायबिटीज़ मेरे जैसे किसी को हो तो वो सही रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए उसको क्या सल्यूशन है, दवा कोई है, कोई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, वो मुझे बताने के लिए मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। इस एफर्ट को कहते हैं एनोनिमाइज़र, क्रिएशन ऑफ एनोनिमाइज़र। ये एक हैकाथन यानी कि कंपटीशन के ज़रिए हम कर रहे हैं। उसके फर्स्ट स्टेज में हम करेंगे इसका प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम क्या है ये समझेंगे, और सेकंड है इसको सॉल्व कैसे करें। उसमें एकेडमिशियन को बुला रहे हैं, स्टूडेंट को बुला रहे हैं, इंडस्ट्री को बुला रहे हैं, प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, किसी ने भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन जो पोर्टल है, हाँ, इसका एप्लीकेशन का साइट है anonymizer.wb.gov.in, anonymizer.wb.gov.in।
अप्लाई करने के बाद वो जो आएंगे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस? आपको दिया गया है, देख लीजिए आप, इसमें नीचे लिखा गया है, आपका जो कॉपी दिया है उसमें वो जाने से वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस क्या होगा सर? किस आधार पर मतलब इन लोगों को सिलेक्शन होगा कि आप कोई आधार नहीं है, आप बताएं कि आप इंडिविजुअल हैं। इनका काम है सजेशन देना। पहले तो आइडिया बताएंगे, वो आइडिया हमारे मेंटर के पीछे जो है ग्रुप है वो उसको सही तरह से आइडिया को एनुमरेट करेंगे, उसके बाद फिर से वो खोल देंगे सभी के लिए, उस पर कंपटीशन होगा, तब सोल्यूशन निकल के आएगा। लास्ट डेट से कुछ है सर ऐसा? हाँ, हम चालू कर रहे हैं, ये तो आप आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1 महीना रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा, जनवरी के मिड तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन होगा 1 महीना तक, उसके बाद 1 महीना तक उसका हैकाथन चलेगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन सिस्टम से होगा? पूरा प्रोसेस ऑनलाइन सिस्टम है, आपके पास ये दिया हुआ है और नीचे हैकाथन anonymizer.wb.gov.in यह है इसका पोर्टल, और किसी ने अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछने के लिए हैकाथन@wb.gov.in में मेल कर सकता है।